Friends, today, uh, ઇકો આવે છે ઇકો આવે છે ઇકો આવે છે Okay, let me start. Today, we are going to talk on Gamut of Investing in GIFT City. The GIFT City is a dream project of Prime Minister of India, Narendra Modi Sahab, and he has worked on for a while. Now it has become, it was a like adolescence. Now it is like IPL 18. Now, now you can say GIFT City 18. Now onwards, you will see huge difference in the way things are going to grow faster than you ever thought of it. So, GIFT City is for two people. A layman, I don't think it's good for layman. Yes. Because that's the platform which people are using to lure the investment there. This is nothing but real estate investment. And I don't talk about that. We are talking about exactly how to invest for the professional or a businessman and how usually they are benefited. That is what Nirav is going to talk. Nirav has worked on the area in GIFT City over a period of more than uh, 5 years. So the experience nowadays, if you want to invest in a GIFT City, there is a GIFT City model. And once you ask the question, they will answer you in detail. And above all, if you have any issue which is coming up, we are there to guide you. Okay. And this presentation would be available on cnhmpathakblogspot.com, on PPT as well as YouTube. And then onwards, if you have any query regarding this subject of GIFT City, we are here to support you in full. And our aim is to see that India beats China over a period of time by knowledge, by application of knowledge, by cutting edge technology which India has it. We want to implement it. I assure you, we are into business of giver of investing in GIFT City, which is taken today. Now we have taken a case study on 69 on money. On money means when the builder or developer is raided under section 132 survey or search, on the basis of which notice are issued, on the basis of diary, dump document, and so forth. And the person who is either an investor or who has bought the flat, the difference is added to their income. I've gone through number of judgment. Now the series 3 I'm going to take it, which is on 13 June, Friday, 6:30. Free Zoom seminar. Physically, you can visit at B11 Module Height. 20th June, GST collection is on rise. Because of that, number of issues are coming. Qua ITC, number of issues which are coming up. We are on the series of judgment. We are taking it. So number of series, this is either fourth or fifth series. Many of the presentation are on our blog. Then what has happened today because of the growth of the economy? There are a lot of funds are available with the people and they don't know how to invest in the stock market. Our series stock market investment 2 will be there. Next GST 4th July 11th, we are going to talk on chart trading, intraday trading. How to do chart trading, we are going to take this all available, these all PPTs are available on blog. With this, I'm handing over the mic to Sri Nirav, who is absolutely gem on the subject. Very few people are very sharp on the subject, and this is the presentation now. It's available to him. Now, over to Nirav. Okay.
you can use heads or this. This one. ये भी चले. Okay. Use this one. Hello, good evening. First of all, thanks to Nitin Pathak sir to giving me the opportunity to export the knowledge in GIFT City. We are delivering the content in Hindi plus English language, so can everybody can get idea. गिफ्ट सिटी 2007 की बात है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने एक बार ऐसा आइडिया लॉन्च किया था कि वर्ल्ड में कुछ जो भी बिजनेसेस फाइनेंस के रिलेटेड है, जैसे दुबई की बात करें, लंदन की बात करें, तो ऑलरेडी हैज ए फाइनेंशियल हब. तो ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए. और ऐसे नॉर्मली फॉर्मल मीटिंग हुई और उसमें मतलब बात ऐसी हुई कि नाम क्या रखे. तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जस्ट गिफ्ट बोल के छोड़ दिया कि गिफ्ट ऐसा नाम रखे, आप डिसाइड करो कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन जोड़ना है. उसके बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी ऐसा कुछ नाम रखे. इस नाम में बहुत कुछ है. गुजरात को इंटरनेशनल बनाया गया है और फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है. अभी जैसे हम नॉर्मली बात करें कि फाइनेंस मतलब हम नॉर्मली लेमन में हम यही समझते हैं कि ले देन का धंधा है, बैंक के पास फाइनेंस लेते हैं और हम उसमें तो थोड़े टाइम पे रिपेमेंट करते हैं, तो बैंक ऐसे बिजनेस करती है. बट जो गिफ्ट सिटी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो फाइनेंस का बिजनेस सेटअप है वो थोड़ा अलग है. उसको टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा जोड़ा गया है. अभी मैं लास्ट में बताऊंगा. अभी मैं आपको हाईलाइट दूं कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड एंटिटी, एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप लीजिंग, फाइनेंस कंपनी, एंसेलरी सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो फाइनेंस की कैटेगरी में ऐड किए गए हैं. अब मैं बेसिकली आपको आइडिया दूं कि गिफ्ट सिटी में दो जोन है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड डोमेस्टिक जोन्स. इन कंसर्न ऑफ द बिजनेस एस्पेक्ट तो हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देखना होता है. एसईजेड एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डाली गई और उसमें से फाइन आईएफएससी एक्ट का जन्म हुआ. बेसिकली वहां पर जो एक्ट डील करता है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एक्ट डील करता है. तो उसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो एसईजेड एक्ट के थ्रू हुआ है और इसीलिए उसको मल्टी सर्विस एसईजेड एरिया बोला गया है. जनरली क्या होता है एसईजेड एरिया में, जो गवर्नमेंट एक्सपेंशन के लिए वो डिक्लेयर करती है एरिया कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अलाउ किया गया है. बट इस एसईजेड एरिया में मल्टीपल फाइनेंशियल यूनिट बनेंगे, इसलिए उसका नाम मल्टी सर्विस एसईजेड एरिया रखा गया है. अब दूसरा कंसर्न ये है कि जो भी वहां पर बिजनेस एस्टेब्लिश होगा तो वो इंडियन करेंसी में ट्रांजेक्शन नहीं होगा. अभी डोमेस्टिक मतलब जियोग्राफिकल वाइज हम देखने जाए तो गिफ्ट सिटी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, नो डाउट. बट एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की तरह देखने जाए तो गिफ्ट सिटी में एसईजेड जोन है जो आईएफएससी एक्ट, इट्स ट्रीटेड एज आउटसाइड इंडिया. इट मींस वॉट एवर ट्रांजेक्शन occurred in a gift IFSC, it's all are international transactions. तो वहां पर इंडियन करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन अलाउड ही नहीं है. अभी वहां पर जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं उसमें टोटली कस्टम ड्यूटी फ्री है. जो भी एक्सपोर्ट आप करते हैं तो भी विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट होता है. मतलब ड्यूटी फ्री ऐसा जोन बोला गया है. वहां पर हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जम्पशन क्या है आगे जाके. वहां पर बाय रेगुलेशंस वाइज हम देखने जाए तो कौन से रेगुलेशंस है. तो एसईजेड एक्ट जो मैंने पहले बोला उसमें आईएफएससी रेगुलेशन एक्ट की तरह बनाया गया है. इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कस्टम एक्ट एंड कंपनीज एक्ट.
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट, जो आईएफएससी में जितने भी यूनिट है वहां पर भी टैक्स एग्जम्पशन है। स्टैम्प ड्यूटी नॉट चार्जेबल फॉर ट्रांजैक्शन इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टैम्प ड्यूटी आप देखने जाए तो गवर्नमेंट की वो मेजोरिटी पार्ट ऑफ इनकम होती है स्टेट गवर्नमेंट की। अब स्टैम्प ड्यूटी वहां पर नहीं लगती है, इट मीन्स मोस्ट टैक्स एडवांटेज वहां, सॉरी, मोस्ट टैक्स एडवांटेज प्लस कॉस्ट सेविंग बेनिफिट है। अच्छा, अब हम धीरे धीरे गिफ्ट सिटी में घुसते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। तो पर्टिकुलर बेस्ड दो जोन है, मैंने आपको बताया कि एसईजेड जोन और एक नॉन एसईजेड जोन। एसईजेड जोन के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आईएफएससी सेंटर है, वहां पर बिजनेस की जितने भी कैटेगरी है वो कैटेगरी कैसे डील करती है। तो सबसे पहले वो बिजनेस फाइनेंस का होना चाहिए। वो बिजनेस में जितने भी आइटम्स जो सप्लाई चेन में जुड़ती है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डेफिनेशन में फॉल होना चाहिए। और वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डेफिनेशन में फॉल होने के बाद वो फाइनेंशियल सर्विस जनरेट होता है। इट मींस थ्री थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज पर आईएफएससी एक्ट। मतलब मैं अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये थोड़ा लॉ का ज्ञान क्यों मैं अभी दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा है कि उसको समझने के लिए, गिफ्ट सिटी को समझने के लिए थोड़ा लॉ का अंडरस्टैंडिंग इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा डोमेस्टिक जोन से थोड़ा अलग है। मतलब वो इंटरनेशनली बिजनेस ट्रेड कर रहा है। तो जितने भी आपको अंडरस्टैंडिंग है वो लॉ के थ्रू ही आएगी। अच्छा, अभी वहां पर ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डाली गई है जिसकी वजह से कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, 24 आवर्स काम चलना ही चाहिए। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आप देखो कि ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कैसे काम करता है ये मैंने रियल में देखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बात कर पाऊंगा इससे। जहाँ वहां पर जितने भी बिल्डिंग है ना, तो वहां पर नीचे बेसमेंट से कचरा ऑटोमेटिक खींच जाएगा। वहां पर जैसे डोमेस्टिक में ऐसे एएमसी की टोली आती है कि चलो कचरा लाओ, ऐसे कभी गिफ्ट सिटी में ऐसा होगा ही नहीं। मतलब वहां पर ऐसी चीज का ध्यान रखा गया है कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वहां पर हो गए तो ओनली एंड ओनली बिजनेस मैन ही वहां पर घूम कर आएंगे। ऐसे डिस्टरबेंस ना हो इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है। दूसरा ये भी है कि ये आइडिया नॉट ओनली पैसा बनाने के लिए है, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी बहुत ख्याल रखा गया है कि जितने भी वेस्ट कलेक्टेड होंगे उसको रिसाइकल करके एक अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि डस्टबिन में कुछ चला जाएगा या फिर उसको डोमेस्टिक की तरह उसको जलाया जाएगा। इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की वहां पर बहुत कोशिश की गई है और अभी ये सिस्टम चालू भी हो गया है। ये कमांड कंट्रोल है। पूरे गिफ्ट सिटी को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे सिस्टम बनाई गई है कि जहां पर टोटली गिफ्ट सिटी वहां पर सिक्योरिटी बेस कंट्रोल में है। कौन कहाँ क्या आ रहा है, कौन कर रहा है, एक एक सेकंड का वहां पर डेटा रिकॉर्ड होता है। इसीलिए रिकॉर्ड होता है क्योंकि ये गिफ्ट सिटी आईएफएससी जोन है, वो पूरे इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सिक्योरिटी का मामला है वो बहुत ही अश्योर रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ऐसे बाहर क्या हो रहा है, जैसे हम जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं अभी, ये इस सब में इसीलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो भी इंटरनेशनल लोग, जो एनआरआई है, जो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, तो उसको ये सब चीज की फैसिलिटी की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि वहां पर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। अभी मैं अब एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की मैं बात करूं तो उसमें पूरी टिकट साइज 3 मिलियन है।
तो फाइनेंस का रिस्क बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए इस सभी चीज का मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेटा सेंटर है, ये कूलिंग सिस्टम है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी ऑफिस होती है डोमेस्टिक जोन में, तो हम एसी लगाते हैं। तो गिफ्ट सिटी में जितनी भी ऑफिस होगी, तो वहां पर एयर कंडीशन नहीं होगा। जैसे हमारे घर में कैसे गैस लाइन होती है, ऐसी एक लाइन आएगी। तो इसकी वजह से आपका जो इंस्टॉलेशन होगा, इस टेक्नोलॉजी हार्डवेयर का जो पॉइंट पॉइंट होगा, तो वो मिनिमल हो जाएगा। और आपको एयर कंडीशन का बिल आएगा घर पे। उसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो लाइट बिल प्लस जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो सब कुछ बच जाएगा। तो ऐसी एक सिस्टम बनाई गई है कि हर एक यूनिट में एयर कंडीशन जाएगी, जैसे गैस लाइन जाती है ना, इसलिए आई थिंक डोमेस्टिक में ऐसा सिस्टम आना बहुत ही मुश्किल है। और ये सिस्टम में मतलब ये जो सिस्टम यहाँ पर बनी है, इट्स रियली गिफ्ट फॉर गिफ्ट सिटी। ये यूटिलिटी टनल है, मैंने अब स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर क्या है कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन सिस्टम है, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसे पूरा सराउंडिंग जमीन के अंदर बनाया गया है। और इसीलिए ये जमीन के अंदर बनाया गया है क्योंकि अब देखो, अब डोमेस्टिक में क्या होता है, जैसे कभी बारिश का सीजन होता है, तो वहां पर कुछ कुछ पानी का लीकेज होता है, या फिर कुछ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर पुल बन रहा है। तो क्या है कि वहां पर वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा कुछ आ जाता है। तो गिफ्ट सिटी में वर्क इन प्रोग्रेस जैसा आज नहीं, कभी भी जिंदगी में बोर्ड नहीं दिखेगा आपको। ये इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये पूरा जमीन के अंदर इसी तरह से बनाया गया है कि आप अंदर घूम सकते हो। दूसरा ये है कि किसी भी चीज का लीकेज होता है, तो इमिडिएटली विद इन 10 मिनट्स के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको रिजोल्व किया जा सकता है। अभी एक एग्जांपल है कि सपोज एक ड्राइविंग रोड है, वहां पर कुछ लीकेज का पानी का है, प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो म्यूनिसिपालिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पर लीकेज है। उससे पहले भी तो पहले रोड बंद करना पड़ेगा। तो इससे क्या दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, पूरा काम रुक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन गिफ्ट सिटी में कभी आएगी नहीं, बिकॉज ऑफ दिस यूटिलिटी टनल्स। और इसीलिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए जरूरी है कि ये 24/7 चलने वाला बिजनेस है। अगर ह्यूमन बींग चलो 7-8 घंटे काम करेगा, पर इंटरनेशनल मार्केट नहीं रुकता है, डेटा एनालिसिस नहीं रुकता है। ये फाइनेंस की दुनिया है, फाइनेंस की दुनिया 24/7 चलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी है, पूरा कस्टमाइज है, उसको डोमेस्टिक के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। और बहुत ही बहुत मतलब मिनिमम होगा कि गिफ्ट सिटी में लाइट जाएगी। क्योंकि गिफ्ट सिटी में अगर चलो मान लो कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो कितना सारा ट्रेड रुक जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन कभी आए भी ना, इसलिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है फॉर बीइंग अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब भी अभी मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाता हूँ कि सबसे पहले अगर हमें आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करना है, तो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था। पर वो बहुत स्ट्रिक्ट था, आरबीआई की हर बार अप्रूवल लेनी पड़ती थी। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, उसको रिवाइज करके, और रेगुलेशन वर्ड हटाया गया, इसलिए कि थोड़ा रिलैक्सेशन दे। अभी भी फेमा के बाद भी थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन आईएफएससी एक्ट में आया है। मतलब ये सीक्वेंस ऐसी चली कि सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, उसके बाद अभी आईएफएससी एक्ट आया है, जो पूरा इंटरनेशनली काम कर रहा है। और जब भी बाहर इन्वेस्टमेंट करने की बात आई, तभी दो मेजर ऐसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए गए थे। उसमें सबसे पहला था टैक्सेशन का, और दूसरा रेगुलेशन का। अभी देखो कि आपको डोमेस्टिक के अंदर रहकर आपको बाहर बिजनेस करना है, तो बहुत सारी अप्रूवल आपको लगेगी, जैसे सेबी, आरबीआई, अगर इंश्योरेंस है तो आईआरडी है। तो ये सब प्रोसीजर कैसी है कि बहुत लंबी है, जो ऑलरेडी एक्ट में डिफाइन की गई है। अभी उसको बंद नहीं कर सकते।
जो भी अभी देखो आप 3,000 जैसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड डोमेस्टिक में पूरे इंडिया में अभी वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो वो एक्ट को बंद नहीं कर सकते, बट उसको एक ऐसा अल्टरनेटिव निकाल के, मतलब एक टाइम पे शायद मेरे ऐसा अंदाज है कि शायद शायद 10 या 20 25 साल के बाद एक ऐसा सिंगल रेगुलेशन फॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से सभी लोग आईएफएससी एक्ट में फॉलो हो जाएंगे, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। आगे हम यही बात को हम धीरे धीरे समझेंगे। अब हम टैक्सेशन की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कई सारे इंसेंटिव दिए गए हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर इंसेंटिव मतलब एग्जम्पशन दिया गया है, जैसे कि आपको सीआरएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। स्टेट सब्सिडी आईटी और आईटी सब्सिडी पॉलिसी भी अभी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। ये डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है सेक्शन 80 का, जो भी शायद इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट फैटर्निटी से बिलोंग नहीं करते उसके लिए बहुत सिंपल कर देता हूँ कि ये ऐसा टैक्स एग्जम्पशन है कि 10 साल तक आपको टैक्स जो प्रॉफिट आपको बचता है उसमें लगता नहीं है, और वही प्रॉफिट आप यूटिलाइज करके आपकी नेटवर्थ बढ़ा सकते हैं। अब इसको किसको किसको बेनिफिट दिया गया है, ये जो भी फाइनेंशियल यूनिट वहां पर एस्टेब्लिश होंगे उस सभी को ऐसा बेनिफिट दिया गया है कि आपका जितना भी प्रॉफिट आपको बचेगा वो आपको 10 साल तक टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अक्यूमुलेट करो और अपनी नेटवर्क बढ़ाते जाओ। सबसे पहले क्या था कि बैंकिंग यूनिट को ही सबसे पहले ये बेनिफिट दिया गया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के जो भी अदर आईएफएससी यूनिट है उसको भी ये बेनिफिट दिया गया है। ये प्रोसीजरल थिंग है, तो आई थिंक वी शुड लीव दैट। जो भी वहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, जैसे डोमेस्टिक में 15% मेट लगता है, बट जो गिफ्ट सिटी में वो भी कंपनी एस्टेब्लिश होंगी तो उसको 6% बेनिफिट हो जाएगा, मेट कम लगेगा, 9% ही लगेगा। दूसरा ये भी है हमारे डोमेस्टिक में क्या है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सचेंज कैपिटल गेन्स होता है, उसमें आपको 15% या 10% रेट से आपको टैक्सेशन होता है। बट यहाँ पर 5% का कंसेशन दिया गया है, तो आपका वो भी अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेविंग में इंक्लूड हो जाएगा। एयरक्राफ्ट लीजिंग हम लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी देखो, जितने भी एनआरआई लोग हैं जो गिफ्ट सिटी में ओनली इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम डिराइव करते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, तो उसको ना ही आरओए फाइल करने की जरूरत है, ना ही पान की जरूरत है, और उसको ना भी टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। बट कंडीशन इज ओनली दैट इट्स ओनली एंड ओनली इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड लोकेटेड इन आईएफएससी इन इंडिया। कस्टम ड्यूटी भी आपकी, जितने भी गुड्स आप इंपोर्ट करेंगे, अभी ये क्या है कि एसईजेड जोन को मैंने पहले बोला था मल्टी सर्विस जोन डिक्लेयर किया गया है, तो वहां पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, बट इट इको फ्रेंडली, क्योंकि वहां पर एनवायरमेंट की परमिशन ज्यादा लगती है, तो वहां पर उसको भी बेनिफिट दिया गया है। अल्टीमेटली क्या है कि वो फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर रहा है, और मेन पर्पस गिफ्ट सिटी का यही था कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज कैसे आए। और दूसरा ये भी आपको बताऊं कि चलो बात निकली है तो मैं छेड़ ही देता हूँ कि हमारे इंडिया के पास मैथमेटिकल जो पावर है ना वो वर्ल्ड में शायद किसी के पास नहीं है। अब मैं सिंपल एग्जांपल दूं, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ठीक है, उसमें इतने में इंटरलिंक हो जाएगा। अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंट्री में जाते हो तो वहां पर जो शॉप कीपर होते हैं, तो वहां पर आपको सपोज कोई आइटम परचेस करनी है, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि वो 70 रुपीज की है, तो हम 100 रुपीज की नोट देते हैं, तो उसके पास शायद मान लो कि 30 रुपीज के चेंज नहीं होगा। तो हम ऐसे इंडियन का दिमाग चलता है तो हम क्या बोलते हैं कि चलो ये 20 रुपए की नोट आप रख लो, 50 रुपए मेरे को वापस दे दो। ये मैथमेटिक्स इंडियन लोगों को समझता है, वहां पर उसको इतना भी ये सब चीज भी कॉम्प्लिकेटेड लगती, वो भी 100 - 70 करके 30 करेगा और 30 चेन ही देगा।
वो आप 20 रुपीज देंगे तो वो वापस वो समझेगा नहीं। तो मेरा सिंपल ये समझाने का टॉपिक ये है कि जो इंडिया के पास जो स्टॉक मार्केट का एनालिसिस है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पावर है, और शायद वर्ल्ड में ऐसा दिमाग कहीं पर भी नहीं है। और जैसे हमारा जो लॉस है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और फाइनेंस के कुछ अलग अलग लॉस है, तो इतना स्ट्रिक्ट लॉ और इतना कॉम्प्लिकेटेड शायद वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। अगर ये सीख लिया ना, सीख गया ना, तो वर्ल्ड की किसी भी चीज का जो डिसीजन होगा ना, तो इजिली ट्रैक कर पाओगे। सिर्फ इतना ही है कि वहां पर थोड़ा बैकग्राउंड समझना रहता है। बाकी डोमेस्टिक की कंपैरिजन में इंटरनेशनली जो भी ट्रेड है, स्टॉक मार्केट है, वो बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड है। ड्यूटी ड्रॉपबैक का भी बेनिफिट वहां पर दिया गया है। एयरक्राफ्ट लीजिंग वाला बिजनेस है, वो बहुत ही मतलब डिटेल ओरिएंटेड गवर्नमेंट ने डाला है। वो मैं लास्ट में इसीलिए लूंगा क्योंकि उसमें आप किसी भी एंगल में सोचेंगे तो सभी एंगल में टैक्स बेनिफिट ही है। टैक्स बेनिफिट, स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। अब उस जो भी एयरक्राफ्ट लीजिंग में बिजनेस में इन्वेस्ट पैसा डालेगा, तो उसको भी जो भी रिटर्न कमाएगा उसको भी टैक्स नहीं है। मतलब एयरक्राफ्ट लीजिंग वाला बिजनेस वो प्रॉफिट कमाते हैं, उसको तो एग्जाम्पशन है ही है। बट बाहर से कोई इन्वेस्ट करता है और वो रिटर्न कमा के ले जाता है, तो उसको भी टैक्स नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैं थोड़ा लास्ट में डिस्कस करूंगा। ये सिंपल वर्ड में ऐसा बता दूं कि गिफ्ट में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। जो भी सर्विस इनवर्ड हो रही है उसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर आप गिफ्ट सिटी में से डोमेस्टिक में कोई भी सर्विस आप दे रहे हो तभी जीएसटी लगता है। आप इंटरनेशनली कोई भी सर्विस दो, वहां पर जीएसटी नहीं लगता है। यहाँ पर क्या है गिफ्ट सिटी में कि आपकी जो भी करेंसी होगी ना, वो आईएनआर के अलावा ही होगी। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आईएनआर बीच में घुसेगा ही नहीं। और सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, अगर आप सेम टू सेम बिजनेस डोमेस्टिक में करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल, एक बहुत ही लेमन वाला एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने एक डोमेस्टिक में एक यूनिट एस्टेब्लिश किया, ठीक है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट थ्रू ही किया, और आउटसाइड लिमिट अभी तो क्या है कि एग्जॉस्ट हो चुकी है, लास्ट में आपको सर्कुलर दिखाऊंगा। पहले होता था कि सपोज बाहर से इन्वेस्टमेंट आया है, तो उसको आईएनआर में हम कन्वर्ट करेंगे, आईएनआर से फिर दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। जो भी कन्वर्जन होगा ना, वो आईएनआर थ्रू ही होगा डोमेस्टिक जोन में। बट गिफ्ट सिटी में ऐसा नहीं है। गिफ्ट सिटी में अगर आप यूएस डॉलर बाहर से लाते हो और आप जापानीज कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, आईएनआर बीच में घुसता ही नहीं है। और सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है पता है कि डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से आप सबसे पहले आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे। आईएनआर के बाद अगर सामने वाली करेंसी अगर डेप्रिशिएट मोड में, मतलब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट मोड में होगी, तो क्या है कि कन्वर्जन के कारण हम कम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शायद ये प्रैक्टिकल मुझे अभी एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये पूरा वर्किंग्स होता है, तो उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं। टैक्स हॉलीडे पीरियड पीरियड आपको 10 साल का मिलता है, जो डोमेस्टिक में टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। दोनों यूनिट इंडियन जुरिडिक्शन के अंदर ही है, बट इंटरनेशनली जुरिडिक्शन डिक्लेयर किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एज पर फेमा एक्ट। वहां पर अब हम थोड़ा डिटेल में थोड़ा जा रहे हैं अभी।
अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आईएफएससी यूनिट में क्या होता है, कितने बिजनेस कैटेगरी है, पर एक्चुअल में कौन सा मतलब किस टाइप की कैटेगरी का बिजनेस है कि वहां पर हो पा रहा है अभी। बैंकिंग का बिजनेस, बुलियन एक्सचेंज, फिनटेक्स, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट रेगुलेटरी, शिप लीजिंग, एयरक्राफ्ट लीजिंग, फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन। अभी कोई बोलेगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटी का बिजनेस फाइनेंस के साथ कैसे कनेक्ट होता है, मतलब उसका तो कोई मेल जाम होता ही नहीं है ऐसे लॉजिकल देखे तो। बट इसमें क्या है कि यहाँ पर फाइनेंस को लिमिटेड नहीं रखा है। फाइनेंस के साथ जितने भी सर्विसेज जुड़ी है सबको मर्ज किया है। अभी मैं एग्जांपल लूँ कि शिप लीजिंग बिजनेस में एक्चुअली फाइनेंस कहाँ से अरेंज करके शिप परचेस करके उसको लीज करना होता है। आपको लगेगा कि ये कहाँ का फाइनेंस हुआ, बट आप देखो कि अल्टीमेटली इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। दूसरा ये है कि ये जितने भी मॉडल बनाए गए हैं वो स्टार्टअप के लिए नहीं है। अगर कोई सोचता है कि गिफ्ट सिटी स्टार्टअप के लिए बना है तो ये मिथ दिमाग में नहीं रखना। ये बिजनेस स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए है। अभी ये कैसे हो गया, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड करके एक कैटेगरी है बिजनेस, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल लिंकेज कराता हूँ तो ताकि आपको और आइडिया है। तो एएफ कैटेगरी में क्या है, तीन टाइप की कैटेगरी होते हैं, कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3। कैट 1 में क्या होता है कि आपको परमिशन दी गई है कि आप वेंचर कैपिटल फंड और स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टअप आपका इंडिया के बाहर भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर कोई, मैं आज एग्जांपल मान लो कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो मेरे जो भी गवर्नमेंट के इंसेंटिव होंगे वो जो डोमेस्टिक लॉ में डिफाइन किए वो तो ठीक है, मिलेंगे ही मिलेंगे। पर मेरे को फंडिंग चाहिए तो मैं बैंक के पास जाऊंगा। अच्छा, बैंक आप में इन्वेस्ट करेगा, बट बैंक इज अल्टीमेटली इज अ पार्टनर एंड पार्टनर इज बाय फिक्स रिटर्न ऑफ पार्टनर। आप बिजनेस करो या ना करो, आपको हर महीने उसको रिपेमेंट करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको डेट नहीं उठाना है, आप ये बोलते हो कि मेरे में कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप आईपीओ के लिए जाते हो। मतलब जो भी कंपनीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो डोमेस्टिक लॉ में आईपीओ के लिए जाती है, तो उसमें भी सेबी का रेगुलेशन बीच में आता है, आरबीआई भी घुसती है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर को आप पार्टिसिपेंट बनाते हो अपनी कंपनी में। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे एक सिंगल इन्वेस्टर चाहिए, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है, जो मेरे आइडिया को हार्ट टू हार्ट अंडरस्टैंड करे और पैसा इन्वेस्ट करे, और मुझे ये लपचप नहीं, मुझे भी पता है कि मेरा आइडिया ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि 10-15 महीने में रिटर्न देगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका विजन कोई समझे, आगे जाके आप में ट्रस्ट करे, और आपको ऐसा इन्वेस्टर मिले कि जो आपके साथ भी रिस्क लेने को रेडी है, और जो भी प्रॉफिट मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट रेशो तो बाद में वो डिसाइड होगा, बट आपको ऐसा रिस्क टेकर चाहिए, तो आपको गिफ्ट सिटी में मिलेगा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के कैटेगरी थ्रू। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कि देखो वर्ल्ड में क्या होता है कि सभी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बैंक डोमेस्टिक मतलब बैंकिंग चैनल लिमिटेड है, बैंकिंग आप पे इन्वेस्ट भी करेगा, बट अल्टीमेटली आपको बर्डन लेवरेजेस का रहता ही है। नो डाउट यहाँ पर, अच्छा किसी को डाउट होगा तो यहाँ पर तो बैंकिंग का बिजनेस है, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर बैंकिंग का जो बिजनेस है ये इंटरनेशनली ट्रेडिंग को फाइनेंस करने के लिए है। और यहाँ पर आप जो भी यहाँ से फाइनेंस आपको मिलेगा गिफ्ट सिटी में से फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको कई सारे रेगुलेशन से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आरबीआई पिक्चर पिक्चर में नहीं आएगा, सेबी नहीं आएगा, कहीं हद तक थोड़ा बड़ा सेबी का रेगुलेशन टच होता है, बाकी नहीं होता है। और ओनली वन सिंगल अथॉरिटी के साथ आपको डील करना होता है, दैट इज आईएफएससी अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एक्ट अथॉरिटी है। आपने शायद ये वर्ड कहीं पर सुना होगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम।
उसका मीनिंग ही ये होता है कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक ही अथॉरिटी के पास चले जाओ, आपको वहां पर 360 डिग्री सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी आईपीसी एक्ट में ये सभी जितने भी नाम लिखे हैं ना, उसका स्पेसिफिक रेगुलेशन बनाया गया है, और रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया गया है कि आप कौन सी एक्टिविटी कर पाएंगे। अभी सभी रेगुलेशन को डिस्कस करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट आपको दो तीन जो ज्यादा पॉपुलर है वो आपको बता दूं। फिनटेक करके एक कैटेगरी है, ठीक है, फिनटेक एंटिटी अभी मोस्ट पॉपुलर यही है। आप थोड़े टाइम पे आप अभी कोविड के बाद, सॉरी, कि जो फ्लो ऑफ आईटी का आया था वो जबरदस्त आया था। आईटी में भी दो कैटेगरी है, फिनटेक और नॉर्मल टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी देखो, कंपनी के आगे फिनटेक नाम लगाने से फिनटेक नहीं बनती। फिनटेक का आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपकी जो सर्विसेज है, जो भी फाइनेंशियल आपकी जो आपकी प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट फाइनेंस के साथ जुड़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल पेटीएम है, गूगल पे, इट्स ऑल आर फिनटेक एग्जांपल, कि जिसकी वजह से फाइनेंस का फ्लो है एकदम इजी बन गया है। फाइनेंस कंपनी रेगुलेशन है, ये फाइनेंस कंपनी रेगुलेशन है, प्योरली फॉर फंडिंग के लिए है। ये जैसे बैंकिंग के जैसा काम करती है, बट जितने अल्टरनेट इन्वेस्ट फंड में रजिस्ट्रेशन हुआ है, इतना फाइनेंस कंपनी में नहीं हुआ है। फॉरेन यूनिवर्सिटी, अब फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगी, आपको मैं बताऊं कि फाइनेंस के रिलेटेड जितना भी एजुकेशन है वो यहाँ यूनिवर्सिटी आके सभी को इंटरनेशनली फाइनेंस सिखाएगी। और उसको एक, जितना अभी देखो कि इंडिया में जितना दिमाग है ना साहब, इतना, मतलब प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास ऐसे शायद नेचुरल मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से हम थोड़ा पीछे है। बाकी जो दिमागी आइडिया, जो फाइनेंस का जो जितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कैसे सिंप्लीफाई करे, इसी जो स्ट्रेंथ है वो वर्ल्ड में शायद मेरे को नहीं दिखी। तो यहाँ पर आके बच्चे पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ, और वर्ल्ड में इंडिया का फाइनेंस का कितना मच पावर है वो दिखाएंगे। तो इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ आई थिंक 6 to 7 years। और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आई थिंक दो तीन रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। एक पूरा डोम उसने एक्वायर कर लिया लीजिंग पे लिया। दूसरा ये भी बता दूं कि वहां पर कोई ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज आपको, सपोज बिजनेस आपको सेटअप करना है तो आपको लीजिंग थ्रू ही जाना पड़ेगा। मैक्सिमम 99 ईयर की लीज होती है, और पर मंथ आपको लीज पेमेंट करना होता है। तो नो ओनरशिप कॉन्सेप्ट इन आईएफएससी जोन्स। अब ये रियल डेटा है। आईएफएससी में रजिस्टर्ड एंटिटी 129 सितंबर 2020 तक थी। ये 4 साल में 750 प्लस हो गई। नंबर ऑफ बैंक 14 थी, पूरा डबल हो गई 4 साल में। आप उसका असेट का साइज देखिए, 14 बिलियंस, नॉट मिलियन, 14 बिलियंस के जाके US$ 78 बिलियन हो गया। अभी आपको लगता होगा कि ये बड़े बड़े फिगर है, तो ये क्या एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है, सब दिखावे के लिए है कि नहीं है। सर मैं आपको बताऊं कि एक पहला बिल्डिंग बना था सेवी डेवलपर का, आई थिंक मेरे को ज्यादा जब तक पता है तब तक, कि वहां पर 70% जो एरिया है जो बैंक ऑफ अमेरिका में ऑक्यूपाई करके रखा है, उसमें 400 जन का स्टाफ है। वहां पर वो लोग क्या काम करते हैं। अभी ये क्या है कि ये पूरी दुनिया अलग है, आपको दिखेगी नहीं, आपको दिखेगी बाय ग्रोइंग ऑफ इकोनॉमी। किसी किसी को लगता होगा कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, मतलब ये लोग करते क्या है, मतलब ऐसे ऐसे खड़ा करके रख दिया है। बट बिलीव मी फ्रेंड्स कि वहां पर जो लोग काम करते हैं, जिस लेवल की स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है, जिस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होता है, आपको एक डिफरेंट गेम ही मिलेगा। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर करके फाई है, फाई यूनिट अभी 2004
24 में आया है। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्या हेल्प करते हैं बिजनेस को? मैं आपको सिंपल एग्जांपल लूं कि सपोज आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ले लिए, ठीक है। सपोज मेरा पूरा एक बिजनेस आइडिया है कि जो भी मटेरियल है वहां पर बाहर से आएगा, उसको मैं रीफर्निश करके मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम मेरे बिजनेस में क्या है कि जब मैं इंपोर्ट करूंगा ना तो मुझे इमीडिएटली पेमेंट देना पड़ेगा, बट एक्सपोर्ट करूंगा ना तो मेरा पेमेंट लेट आएगा। तो आपका बिजनेस आइडिया भी बहुत अच्छा है, बट आपकी जो फाइनेंस की चैनल है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, और प्रॉब्लमेटिक की वजह से आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा स्केलेबल नहीं हो पाता है। अभी देखो, मैं कोई मटेरियल परचेस कर रहा हूँ तो मुझे इमिडिएटली पेमेंट करवाना है। तो क्या है कि गिफ्ट सिटी में सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि वहां पर वो कोई एबीसी करके एक एलटीडी है, वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की एक सर्विस देती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो पूरा इंटीग्रेट कर देगा कि देखो अभी तो गूगल पे है तो पेमेंट इमीडिएटली चला जाएगा। तो जो हमको इंपोर्ट करने के बाद इमीडिएटली पेमेंट करना है तो वहां पर पर्सन बंदा होगा, वो पूरा आपका बिजनेस भी ड्यू डिलिजेंस करेगा, उसका भी करेगा, और इमीडिएटली पेमेंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा वहां से। और जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पैसा, सपोज एग्जांपल मान लो कि 30 दिन बाद आने वाला है, तो वहां पर दो जन आपको हेल्प करेंगे, एक पेमेंट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरा भी एक कैटेगरी है जिस अभी आईएफएससी रेगुलेशन ने आई थिंक 4 महीने पहले एक कैटेगरी डाला था। मैं एग्जैक्टली उसका नाम अभी भूल गया, वो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है कोई भी एंटिटी। वो एंटिटी क्या करती है कि आपको 30 दिन बाद आपको पेमेंट आने वाला है, ठीक है, तो आपको बिल डिस्काउंट करके अभी आपको पेमेंट दे देगा। तो उससे दो एडवांटेज हो गए, वो भी पैसा कमाएगा और आपका काम रुकेगा नहीं। जो आप इंपोर्ट करने के बाद आपका जो पेमेंट इमीडिएटली करना रहता है, जो अभी फाइनेंस कॉस्ट है, वो कॉस्ट सेविंग बेनिफिट होगा। इससे विन विन सिचुएशन में पूरा काम होगा। मैं लास्ट में एक बिजनेस जो मॉडल है वो इंटरनली कैसे एक दूसरे को काम करके बिजनेस को स्केलेबल बना सकते हैं, उसका मैं एग्जांपल लूंगा, सभी चीज को इंटरलिंक करके। कैपिटल मार्केट की हम बात करें तो कैपिटल मार्केट में टोटल डेप्ट लिस्टिंग जो आई थिंक +40 बिलियन तक ग्रोथ हुआ है पूरे 4 साल में। फिनटेक की हम बात करें तो 2020 में कोई भी एंटिटी नहीं थी, 4 साल में 44 सैंडबॉक्स के अंदर एंटिटी रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा, सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका कोई ऐसा आइडिया है जो आप इंटरनेशनली बिजनेस करना चाहते हो, बट आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपको उसको टेस्ट करना होता है कि क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है कि वो रियल एनवायरनमेंट में तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप में रहता है, उसमें आईएफएससी अथॉरिटी उसको एनालाइज करती है। आपका जो अगर आइडिया एकदम प्रॉपरली चला और एकदम फ्रूटफुल रहा तो उसके बाद आप सैंडबॉक्स एंटिटी में ट्रांसफर होकर फिनटेक में आती है। तो सैंडबॉक्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी वहां पर दी गई है कि आप अपने आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सेलेटर ऑथोराइजर ये क्या होता है? ये बेसिकली ऐसा है कि जिसकी जो भी बंदा है उसको एक्सेलेटर बोला जाता है, उसकी पास्ट में उसकी नेटवर्थ एनालाइज की जाती है। एज पर आईएफएससी एक्ट उसका नेटवर्थ का कंपैरिजन होता है कि उसकी एरिया में फिट होती है। वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए है कि सपोज ये बंदे को इन्वेस्टमेंट करना है और उस बंदे के पास बाहर से फंड लाना है, तो उसकी खुद की कैपेसिटी को डिसाइड करने के लिए एक्सेलेटर ऐसा वर्ड दिया गया है कि उसकी नेटवर्क कितनी है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, तो उसको एक्सेलेटर बोला गया है। इंश्योरेंस एंटिटी भी बहुत ही ग्रो कर रही है अभी। एयरक्राफ्ट लीजिंग्स अभी 33 थी, अभी 2020 में कुछ नहीं था, अभी 33 रजिस्टर्ड है।
शिप लीजिंग बिजनेस 22 रजिस्टर्ड हो चुकी है। अभी मोस्ट पॉपुलर जो वहां पर बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है दैट इज फंड मैनेजमेंट एंटिटी एंड फंड स्कीम रजिस्टर्ड। अभी क्या होता है, कोई भी अभी पहले ऐसा था कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड विदाउट एफएमई के थ्रू रजिस्टर्ड हो जाती है। आज की तारीख में कोई भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वहां पर जो रजिस्टर्ड होता है तो एफएमई उसके साथ ही बनती है। उसका जो कॉर्पस फंड 2020 में कुछ नहीं था, 2024 में 45.4 बिलियन तक आ चुका है। अभी ये इस बिजनेस कैटेगरी का मैं थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे पाऊंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा यही पॉपुलर है। अभी इसमें क्या है कि तीन कैटेगरी के बिजनेस है, कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3। तो जो डोमेस्टिक में एआईएफ है और गिफ्ट सिटी में एआईएफ है, दोनों अलग है। दोनों अलग इसलिए है कि गिफ्ट सिटी में जो भी एआईएफ होगा उसका पर्पस यही है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा इंटरनेशनली होगा। दूसरा कि अगर आपको आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करना है आज की तारीख में और आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है तो डोमेस्टिक एआईएफ थ्रू आप जा ही नहीं सकते। उसका प्रॉब्लम ये है कि सेबी ने जो लिमिट स्पेसिफाई की थी एग्रीगेट लिमिट वो आज की तारीख में एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो अभी ऐसा फ्लो है कि बॉम्बे में जितनी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है अगर उसको आउटसाइड इंडिया को स्कोप दिख रहा है तो वो खुद की एआईएफ थ्रू नहीं कर सकता, उसको कंपलसरी गिफ्ट में आना ही पड़ता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आपको आरबीआई की परमिशन नहीं लगती है और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आपका पैसा ट्रांसफर करना और वहां पर इन्वेस्ट करना एकदम इजी बन जाता है। रेगुलेशंस वाइज आपको दिक्कत बहुत कम होती है। और आज की तारीख में प्रैक्टिकली अब अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे दुबई में कुछ ऐसी रियल एस्टेट एंटिटी में वहां पर इन्वेस्ट करना है और इससे वर्ल्ड में भी कोई भी एंटिटी कंट्री की बात कर लो तो वहां पे आपको फंड में इन्वेस्ट करना होगा। तो आप फंड थ्रू कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो डोमेस्टिक के रूट के थ्रू आप जा ही नहीं सकते, आपको गिफ्ट सिटी में आना ही पड़ेगा फॉर बीइंग इन्वेस्टमेंट इन आउटसाइड इंडिया। एआईएफ कैटेगरी ऐसी है कि उसमें मतलब उसकी नाम को थोड़ा तोड़े ना तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मतलब इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई लिमिट नहीं स्पेसिफाई किया कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। तो ये थोड़ा अपर लेवल का कैटेगरी है। जैसे रिटेल के बाद म्यूचुअल फंड आता है, म्यूचुअल फंड के बाद अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आता है। तो उसमें मैंने बोला था कैट 1, कैट 2 और कैट 3 तीन टाइप की कैटेगरी है। कैट 1 में क्या होता है कि जो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट होता है वेंचर कैपिटल्स उसमें मतलब वो कैट वहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। कैट 2 प्राइवेट इक्विटी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। और कैट 3 ऐसा है कि जो कैट 1 और कैट 2 जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो कैट 3 तो करेगा ही बट रिटेल इन्वेस्टमेंट भी वो कर पाएगा। मतलब कैट 3 में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट प्रॉब्लम यही है कि वहां पर रेगुलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है कैट 3 में कि थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट लेट्स सी द आईएफएससी अथॉरिटी व्हाट डिसाइड अबाउट इन द फ्यूचर। बट कैट 2 इज मोस्ट पॉपुलर। बुलियन एक्सचेंज की बात करें तो जो भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स, अभी क्या है थिंक बुलियन एक्सचेंज का बेसिकली एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि गोल्ड ऐसा मार्केट है बहुत वर्सटाइल है, कभी प्राइस अपर जाता है कभी लोअर जाता है, स्पेकुलेशन भी बहुत होते हैं। बुलियन एक्सचेंज थ्रू आप कोई भी ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है। दूसरा अश्योरेंस मिलता है कि आपका टाइम पे पेमेंट आ जाएगा, टाइम पे बिजनेस आपका हो पाएगा। स्टैंडर्ड मेन बेनिफिट यही है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्राइस। आपको प्राइस का मतलब देखो मैं सिंपल आपको लैंग्वेज में बताऊँ कि सपोज मुझे कोई ज्वेलरी परचेस करनी है तो मैं 3 ज्वेलर के पास जाऊंगा, अलग अलग प्राइस मिलेगी। बट मुझे बुलियन थ्रू कोई बिजनेस करना है तो वहां पर प्राइस कॉमन रहेगी।
मतलब और भी मैं सिंप्लीफाई करूं तो जैसे स्टॉक मार्केट के लिए एनएससी बीएससी है, ऐसे गोल्ड मार्केट के लिए बुलियन एक्सचेंज है, इसमें सब कुछ आ गया। फॉरेन यूनिवर्सिटी अभी 3 आई है, बीएटीएफ एंटिटी करके 19 एंटिटी अभी 2024 में अभी भी आई थिंक 7 to 8 रजिस्टर्ड हुए। ये सभी बिजनेस कैटेगरी है ना, मैं लास्ट में आपको लाइव में दिखाऊंगा ये रजिस्टर्ड है कैसी है, उसका डिस्क्रिप्शन बिजनेस में मतलब ओपन पब्लिक डेटा ही है, तो आप यू कैन व्यू दैट। बट आप करके सर्विस एंटिटी ये है कि बिजनेस अकाउंटिंग टैक्सेशन एंड फाइनेंस सर्विस। जो भी आप देखोगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो भी फैटर्निटी है तो उसमें केपीओ की सर्विस आई थिंक अभी बहुत पॉपुलर है। तो गिफ्ट सिटी इज अ बेस्ट ऑप्शन आपको इंटरनेशनली केपीओ करना है तो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिलता है कि आपका जो भी नेट प्रॉफिट, मैंने पहले ही बोला था कि आपको 10 साल तक टैक्स ऑलरेडी मिल जाता है। और दूसरा ये कि आप ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हो तो आपका बिजनेस की डोमेस्टिक स्केलेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। क्योंकि वहां पर अगर आप कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो ना, तो आप नॉट ओनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है जो डोमेस्टिक में, जो आगे जाके आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल, सेबी का अप्रूवल, वहां से एमओयू बनेगा, ये सब बहुत सारी झंझट होगी। आईएफएससी अथॉरिटी कई सारे ऐसे एमओयू टाइप दूसरी कंट्री में कर चुकी है, जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंस का फ्लो है और प्रोसेसिंग जितना भी है वो कम हो जाता है। और इसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो फास्ट बन जाता है। अभी आपको सबको ऐसा लगता है कि इतना रिलैक्सेशन, इतना रिलैक्सेशन, इतना रिलैक्सेशन, मतलब क्या रिलैक्सेशन है, मतलब इसमें तो बहुत स्पेकुलेशन हो जाएगा, इसमें आपको मनी लॉन्ड्रिंग वाला हो जाएगा। तो ऐसा कुछ क्या ऐसा है रेगुलेशन में जो ये सब ना होए? देखो वहां पर रजिस्टर्ड एंटिटी करने के लिए आपको कई सारे एंटिटी को, मतलब कई सारे एस्पेक्ट को देखा जाता है। कई सारे केस में तो आपको पर्सनल मीटिंग होती है, उसके बाद ही आपको वहां पर आपको बिजनेस का लाइसेंस देती है। और दूसरा ये है मेन पर्पस कि जितने भी कैटेगरी है उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया गया है, परमिसेबल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी को, उसमें जो डिफाइन की गई है एक्टिविटी वही आप कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज कैसे बढ़े और जो एनआरआई लोग हैं वो इंडिया में कैसे गिफ्ट सिटी में आके बिजनेस करें, उसके हिसाब से ये पूरा रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है। अभी एनआरआई की मैं बात करूं, अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि सपोज को एनआरआई है, उसके बाद बहुत कुछ पैसा है, ठीक है, और वो इंटरनेशनली बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, यूएस में से कोई जापानीज कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, वो चाइना में करेगा, वो ऐसे बिजनेस करेगा। अब थोड़ा हम डेप्थ में जाए, सब्सटेंस और लीगल फॉर्म, वो बंदा तो इंडिया का है, वहां पर कमा भी रहा है, अच्छा कमा रहा है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन इनकम। आंसर इज नो। अगर वही बंदा गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करके पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट करेगा तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक इनकम। जो हमारे जितने भी मैनेजमेंट स्किल के जो बंदे, जो एनआरआई वहां पर है, वो ऑलरेडी वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर सर्विस दे रहे हैं, तो वही लोग इंडिया में आके गिफ्ट सिटी में उसका कुछ एस्टेब्लिश बना के क्यों हम इंडिया को रिप्रेजेंट ना करें? क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ तो इंडिया की है। तो एनआरआई को प्रमोट करने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखो ये सेबी का सर्कुलर की समरी है, शायद आप चैट जीपीटी में ढूंढ ढूंढ के निकालोगे तो भी नहीं मिलेगा, और ये लिंकेज शायद मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ
कि जो भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी है और वेंचर कैपिटल फंड की है, अभी इस लेटेस्ट सर्कुलर 2021 को ये बढ़ाया गया था लिमिट $750 से 1500 मिलियन तक। राइट नाउ ये लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब पूरी एग्रीगेट लिमिट थी। तो अभी आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करना है थ्रू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो आप डोमेस्टिक एआईएफ थ्रू नहीं कर सकते, आपको गिफ्ट सिटी में आना ही पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि सेबी, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये तीनों अथॉरिटी ने आईएफएससी अथॉरिटी को एक पावर दिया गया है। मतलब जो भी आईएफएससी अथॉरिटी अगर कुछ बोलती है तो ये सभी चीज को ओवरराइड कर देती है। सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊं तो अगर आईएफएससी एक्ट में कुछ ऐसा लिखा है कि ये कर सकते हैं, तो आपके बीच में ना सेबी आ सकती है, ना आरबीआई आ सकता है, ना कोई दूसरी कोई अथॉरिटी आ सकती है। इट्स अ फाइनल एंड ओनली वन अथॉरिटी। इसलिए वहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ऐसा वर्ड बोला जाता है कि आपको एक ही अथॉरिटी के साथ डील करना है। अभी थोड़ा मैं मैंने एक पॉइंट छोड़ा था एयरक्राफ्ट। माउस से घूमता है। एयरक्राफ्ट लीजिंग वाला। क्या पॉइंट? देखो, स्टैम्प ड्यूटी का सबसे ज्यादा एक्सपेंस रहता है। जो भी एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस अगर फॉर एग्जांपल आती है, ठीक है, तो उसको एयरक्राफ्ट परचेस भी करना पड़ेगा और कैसी ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा। तो वहां पर क्या है कि स्टेट, एज पर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट आपको स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, तो वहां पर स्टैम्प ड्यूटी को एग्जम्पशन दिया गया है। दूसरा ये बोलो कि अगर वो प्रॉफिट कमाता है तो वो तो एटीएलए में आपको पूरा 100% एग्जम्पशन मिलता है। दूसरा ये है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग में अगर कोई बाहर से बंदा को इन्वेस्ट करता है आउट ऑफ इंडिया, तो वो भी जो इंटरेस्ट कमाएगा वोट एवर कमाएगा, तो वो उसको भी टैक्स फ्री है। अच्छा, गिफ्ट सिटी में दो स्टॉक से, जैसे डोमेस्टिक में एनएससी एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसा ऐसा ही गिफ्ट सिटी में एक अलग कैटेगरी का स्टॉक एक्सचेंज है जो पूरे गिफ्ट निफ्टी करके रिप्रेजेंट होता है। मतलब उसका लिंकेज डोमेस्टिक के साथ नहीं है, पूरा कंपैरिजन में चलता है। मतलब खुद का ही स्टॉक मार्केट, मतलब खुद का स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब ज्यादातर जितने भी वहां पर चीज बनी है तो वो कस्टमाइज को लेकर ही बनी है, इंटीग्रेट नहीं किया है, क्योंकि ये आखिर पूरा पर्पज ही अलग था इसलिए। अभी थोड़ा हम लाइव देखेंगे। मैंने कल ही एक डेटा एनालिसिस किया था अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का। वैसे सभी एंटिटी का कर सकते हैं, बट इट्स मोस्ट पॉपुलर एंटिटी। इट्स कैट 3, टिल नाउ 155 रजिस्टर्ड एंटिटी। अब ऑनलाइन 20 दिखता नहीं है। नहीं दिखता है? अच्छा, शेयर करना पड़ेगा। बताओ इसको। ना, हो जाएगा। दिखा अभी? अभी आ गया। हाँ, 155 एंटिटी रजिस्टर्ड इन कैट 3। कैट 2 81, ये रिटेल स्कीम करके थोड़ा उसमें वेबसाइट में प्रॉब्लम है। ये कैट 3 में ही डालना चाहिए, अभी अभी थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है। ईयर वाइज हम डेटा एनालिसिस ढूंढे तो 2021 में 10 ही एंटिटी थी, उसके बाद 24 हुई, उसके बाद 60 हुई, उसके बाद 105 हुई, अभी 2025, अभी देखो जून महीना चल रहा है तो 56 तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी। और उसकी टिकट साइज क्या होता है कि 3 मिलियन तक, अभी पहले 5 मिलियन तक था 2024 तक, अभी 2025 में 5 मिलियन को घटा के 3 मिलियन किया है। उसको असेट अंडर मैनेजमेंट ऐसा बोला जाता है। ये पूरा रियल डेटा है। ये जितने भी एंटिटी है ना, और ये ऑल्सो अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो ये इसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। काफी इन्वेस्टमेंट सर हुआ है।
एयरक्राफ्ट में भी काफी। एयरक्राफ्ट में भी काफी हुआ है सर। मेनली बेसिकली क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो थोड़ा सेबी और आरबीआई रेगुलेशन की वजह से रुक गया था, वो अभी बढ़ा है। अभी हम सिंपल हम ऐसे दिमाग लगाए तो हम ये भी डाउट रहेगा कि यार सेबी कुछ रिलैक्सेशन क्यों नहीं देती है, ये क्या जरूरत है। अभी क्या है कि कोई भी लॉ को इमीडिएटली पूरा खत्म नहीं कर सकते, उसको पैरेलली ये आईएफएससी एक्ट बनाया गया है। और सेबी ने खुद पावर दिया है आईएफएससी अथॉरिटी को कि अगर आपको पर्पस जो आपके एक्ट एक्ट के हिसाब से प्रॉपरली फुलफिलमेंट हो पा रहा है तो इन्वेस्टमेंट गिफ्ट गिफ्ट के थ्रू ही होना चाहिए। अभी तो काफी कंपनी का फ्लोर खरीदा हुआ है। अभी वहां पर सर क्या है कि परचेस आईएफएससी में कोई भी चीज हम परचेस नहीं कर सकते, वहां पर जो भी लेना हो लीज पे ही लेंगे। कितना सारा मतलब कितने एम्प्लॉइज आ गए काफी। अभी मैं बैंक ऑफ अमेरिका में 400 प्लस एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका में, और इंटरनेशनली सर्विस दे रहा है। अभी मैं अभी मैं आपको थोड़ा इंटीग्रेट करके बताऊं सभी चीज का निचोड़, कि सपोज कोई एक फिनटेक करके एंटिटी वहां पर सर रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। तो वो उसको कई सारे चीज को वो मतलब इंटरनली जो वहां पर बिजनेस है उसको ही सर्विस दे पाएंगे, उसको ही देकर वो मतलब आगे जाके उसको जरूरत ही नहीं है। ये देखो ये 255 कैटेगरी है, तो उसको फाइनेंस को मतलब वहां पर इतना सारा घुसा है, डेटा इतना है, तो उसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई फिनटेक एंटिटी वहां पर कोई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को एक सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे, इट्स ऑल्सो फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी वहां पर जितने भी एम्प्लॉय है उसका इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस की जो बिजनेस है, तो वहां पर जो वो बिजनेस हो पाएगा। अगर वहां पर लेवरेजेस भी अलाउड है, ठीक है, एआईएफ थ्रू। अगर एआईएफ को कुछ फंड लाना है तो वहां पर जितने भी बैंक ऑफ अमेरिका है वहां से ही उसको फंड मिल जाएगा। मतलब जितना भी वहां पर जो फ्रेमवर्क ऐसा बनाया गया है कि जो इंटरलिंकेज है सब कुछ। मतलब अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ कि चलो हम डोमेस्टिक की बात करें तो एक नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो वहां पर तो क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरनेशनली जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो कई सारी ऐसी चीज है कि जहाँ पर सिक्योरिटी का मामला भी आता है, टेक्नोलॉजिकल का भी मामला आता है, फंड का भी मामला आता है, सर्विसेज का बात भी मामला आता है, कंप्लायंसेस की लेवल भी आता है। बट आप करके सर्विस जो वहां पर इंटीग्रेट अभी जो जोड़ा गया है, पहले एंसेलरी सर्विसेज करके कैटेगरी थी, उसमें स्प्लिट अप किया गया। तो स्प्लिट अप में बटा आप करके सर्विस है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस सर्विस, लीगल सर्विसेज है। तो सभी चीज की सर्विसेज वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, और विन विन सिचुएशन में एक बिजनेस मॉडल ऐसा क्रिएट होगा कि अगर कोई भी एंटिटी का कोई बिजनेस किसी भी चीज में रुकता है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ऐसा पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है। पर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि समझने के लिए थोड़ा बहुत कुछ वहां पर जाके देखना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, उसके बाद ये सब सारी चीज समझ आती है। थोड़ा गेम अलग है वहां पर जो खेला जाता है। एक्चुअली जाओगे नहीं तो टेबल पे पता भी नहीं चलेगा ना। नहीं, ऐसा पता ही नहीं चलेगा। अभी सर कैसा है वहां पर कि अगर आपको देखो ये डेटा मैंने निकाला है, ठीक है, इट्स सिंपल, मैंने वेबसाइट में नहीं निकाला है। आप किसी भी बंदे को कॉल करके बोलोगे कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैंने सर एक्चुअली ट्राई किया है 10 जनों को, ही वॉज वेरी पॉजिटिव। सर कोई बात नहीं, आपको जानना है, हमें भी इंटरेस्ट है आपको जानना है। आप उसको बोलेंगे, आपको इंट्रोडक्शन, आप फिजिकल, आप तो हमारे वहाँ तो क्या है कि सर गुजरात में तो नजदीक ही है, आप उसके साथ बैठोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिले। यहाँ से ही नंबर निकाल के कॉल कर देने का सर, कि सर मैं ऐसी सर्विस मुझे जानना है, आपका भी विजन समझना है, 100% आपको इनवाइट करेंगे। और वहां पर जितने भी बंदे हैं वो नॉर्मल बंदे नहीं होंगे,
उसके बाद बहुत सारा नॉलेज होगा तभी वहां पर होगा। मैं सिंपल सर मैं रेगुलेशन की बात करूं ना, तो वहां पर जो रेगुलेशन अभी हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस में भी जो वहां पर का रेगुलेशन अभी जो बनाया गया है, तो बहुत कम लोग उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सभी का क्वेश्चन यही आता है कि हम काम कैसे ढूंढे, काम कैसे ढूंढे। तो मैं ऐसा ओपन पब्लिक में थोड़ा बोलता हूँ कि 2 साल तक मुझे काम नहीं मिला था। मैंने 6 साल वहां पर 6 महीने काम किया था। समझ में बहुत आया था, मुझे आगे का विजन दिख रहा था कि यहाँ पर क्या है। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले एक मुझे काम मिला। वो काम ऐसा था, पूरा टेक्निकल था। तो आई थिंक फीस में डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए ओपन पब्लिक में, बट अच्छी खासी वहां पर मिलती है। अगर वहां की स्ट्रेटेजी में हम देखेंगे, समझेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी समझेंगे, उसका अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, उसका लेवल ऑफ माइंड समझेंगे, तो इंडिया का विजन डेफिनेटली आपको दिखेगा कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है। आई थिंक वो दिन अभी कम नहीं है कि हम इस स्टेज पे कब पहुंचेंगे। 10-15 साल में आई थिंक हम बहुत बड़ी सर टक्कर देने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि आप, ये डेटा आपके सामने ही है सर। 2024 में 105 एंटिटी रजिस्टर्ड हुए, और वैसे भी नहीं है वहां पर लेमेन आता है। अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि वहां पर जितने भी एंटिटी आती है, जितने उसका प्रमोटर है, इट्स स्टडीड फ्रॉम आईआईटी, आईआईएम। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो हमने देखा तो वहां पर फंड डाल दिया। इट्स टू मच एजुकेटेड पर्सन। अल्टीमेटली हमारा जो पावर जो है, पावर था इंडिया का, जो मैथमेटिकल पावर्स, जो कैलकुलेशंस पावर, वही यूटिलाइज होगा। शायद हमारे पास टेक्नोलॉजी के लेवल पे हम थोड़ा डाउन हो गए, बट जो फाइनेंस के रिलेटेड हमारा जो नॉलेज है, जो इंटरनेशनली हम उसको प्ले करेंगे फाइनेंस को, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। आई थिंक ये हम खत्म करेंगे अपना ये लेवल प्रेजेंटेशंस। नाउ आई एम हैंड ओवर टू नितिन पाठक सर फॉर रिव्यू। Thank you very much Yes, for sir. a wonderful presentation. Really, we enjoyed it. It's really mind-boggling, uh, and you can see the way कभी किसी को जानना है तो उसका क्वालिटी कैसे पता चलेगा? It would be on the basis of his ability to speak slowly and perfectly. This is the way he has already taken. Okay. Now I am like, any question on this, you're most welcome to come and ask me on the subject. So we are ready to answer you on any subject you wanted. So here is our presentation available. These are all presentation would be available on blog, and we would put the whole YouTube on this. Okay. Now I am here on this share. Okay. With this, we are going to have another lecture on 13th on money, 20th on important judgment, 27th art of investing, 4th July on important judgment of GST, again unlocking importance of chart trading. These are the way we are interested in hiring the CAs and paid staff CA, CMA finalist. I don't prefer finalists, those who are passed, I don't prefer. BCom, MCom first class, GIFT City. You can visit GIFT City. Just call on us. We would be there to serve you, take you there. Definitely, sir. We would take you to the IS officer who can guide you in investment. Any query, if you don't want to come here, you just ping us, and Nero would be available to guide you on a one-to-one basis. Definitely. GIFs, SEZ, GIFISC, these are the words which you think is jargon, but once you go there, it's so simple, so powerful.
there are floors and floors are occupied by Standard Chartered, NSE, and so many Yes, so yes, sir. forth. And it's a huge space. जो पहले हमने सोचा था, when मोदी साहब ने सोचा था इससे जमीन कम पड़ी, Definitely, sir. तो उन्होंने इसको एक्सपांड किया है. And the way I'm listening, it is going to be the number one in the world over a period of 10 years. It would beat all the standards because of two reasons. It will be very good. As Nirav said, technologically we may be a bit behind, but according to me, technology doesn't mean the hardware, but Yes. software we are very powerful. Yes, yes. Mathematically we are very powerful. Manpower is very powerful. And the way things are moving, अगर आप देखते हो तो टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज अगर मैं देखता हूँ तो मैंने पहली बार देखा कि within few minutes or few seconds, when RCB says that we are going to have a road show, Yes. before police reach, people reach. So this is Yes, an yes. advantage of the disadvantage of Disadvantage of this technology. thing. But Yes, I assure you, the way the world is moving, India is going to be the champion of the world. I don't have any doubt about it. I don't have a trust about it. I am full confidence. Only person we are behind. Like, uh, thank you very much, Nirav. You can blog me. Mm. You have an address in a blogspot.com where you can email me, Nirav, or directly, and I would assure you, your journey to Gift City would be one of the best in the world. The knowledge we have it, the clarity we have it, the Gift City is going to be number one. And recently there was a warfare between India and Pakistan. There was four things which were used, which makes India to a superlative level because of not wanting war, but the way it has happened. The war has utilized our four things: drone, Yes. missile, plane, and defense system. The Modi साहब का जो ड्रीम था, we are going to be the number one supplier of defense technology, defense things, and it has been proved. Though day number one was not one of the best which we would have ever thought of it, day three, superlative, superlative for that. Perfect. Those who understand the things, if you look at Ukraine war, Ukraine is a country Mm. which is being beaten badly for over a period of 3 years, and still he can beat through Russia through drones. If Ukraine can do one, India can do 1 lakh. Yes. That's Perfect. the way I see it. And here we are not competing with China, with Pakistan. Yes. We Yes. are competing with China. I assure you, the youth, the the tenacity of the youth is so huge. मेरे को किसी ने बताया था कि total population of USA is 32 crore, 32 crore, and our students are 32 crores. Oh. So the way we are going to beat any country is beyond imagination. Beyond imagination. Infrastructure, everything is going good. There are few lapses, but nobody is perfect in this world. Yes. And Perfect. we don't want to be perfect in this world. We want to try to be perfect in this world. That's perfect. With this, I assure you, anyone who is listening to this talk, after 10 years, 10 साल पीछे देखो इंडिया कहाँ था, Yes. and 10 years ahead you देखो. Mm. अब जो पीछे देख रहे हो ना, आपको अभी दिखता है. दिखता है. अभी 10 साल बाद में देखो देखो ना, तो धूल की ककड़ी भी नहीं उड़ के मिलेगी. नहीं मिलेगी. आज आपको 10 साल पीछे देखोगे तो थोड़ा धूल दिखेगा. Yes. Yes. तो वो 10 साल बाद में आगे जाओगे. मैं तो 5 साल की बात कर रहा हूँ. हाँ, 5 साल आपको बाद कुछ दिखेगा नहीं. दिखेगा. Only thing, work hard, work simple, follow the law, don't go into nonsense things. Yes. Yes. And I assure you, I will assure you that India would be the champion of the world, not because of Modi Saab, Mm. but because of youth and because of the way that the Modi Saab ने जो lead किया.
He has given the vision, mission, and everything. With this, I conclude this session once again. Thanks to Nirav. And I assure you, anything you want on Gift City, anything you want on different subject, please visit us. Thank you very much. See you again on next Friday. Shabba khair.